Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I am teaching you probability and statistics in semester 2, computer science and engineering. Today's topic, median, mode, and harmonic mean, and it's a part of measure of central tendency, as we have discussed in previous lecture. We have discussed in previous lecture measure of central tendency, mean and median, and remaining part of median we will discuss in this topic, and mode and GM, that is geometric mean, arithmetic mean, and harmonic mean. Understood? So let's start. It's an example of another type. If आपको class interval type पे data given है, then you can find the mean and median also. Okay. If you are having a data, this is the class interval 0 to 5 and corresponding frequency is 3, 5 to 10, corresponding frequency 7, 10 to 15, frequency 11, 15 to 20, corresponding frequency 8, and 20 to 25, corresponding frequency 2, and find the mean and median of this data. Okay. इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आता है. ओके आपके प्रीवियस ईयर में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, 7.5 मार्क्स का ऐसा ही क्वेश्चन आया था. तो ये सिंपल टॉपिक है और स्कोरिंग है, इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है. अब एंड वन थिंग इज साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर एग्जामिनेशन, तो आप प्लीज साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना. ओके देन मीन का फॉर्मूला, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, मीन निकालना है, and median is denoted by MD. Mean is also denoted by M also. So MD, we know that the formula of mean, that is x bar is equal to same summation of xi fi upon capital N, where fi are frequencies of ith interval and xi is a value and n is equal to sigma fi. Understood? Okay. Now now construct the table first. This is your class interval. This is your value x, f, cf, and x into f. This is class interval. This is 0 to 5. Then corresponding x is equals to, how can I find x? This is upper limit plus lower limit. Understood? So 0 plus 5 by 2 means upper limit plus lower limit को put add करेंगे, then by 2, 2.5, 5 plus 10, 15 by 2, 7.5, 10, 15 plus 10, 25 by 2, 12.5, 15 plus 20, that is 35, 35 by 2, that is 17.5, 25 plus 20, 45, 45 by 2, 22.5. Corresponding frequencies 3, 7, 11, 8, 2. Okay. And cumulative frequency 3. And next one is 10. How can you find? Then first cumulative frequency, previous cumulative frequency, and next term. Frequency को add करेंगे, that is 10. 10 plus 11, that is 21. 21 plus 8, 29. 29 plus 2, 31. Understood? Okay. Now, if I found, अगर मुझे xf तो 3 को 2.5 से मल्टीपल करेंगे 7.5, 7.5 को 10 से मल्टीपल कर, सॉरी 7.5 को 7 से मल्टीपल करेंगे. ओके तो 7.5 को 7 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 52.5, एंड 12.5 को 11 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 137.5, एंड 17.5 को 8 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 140, एंड 22.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 45. And sum of all the terms is 382.5, and summation of frequencies तो हम CF से निकाल लें, that is 31. Understood है? अगर मुझे मीन निकालना, that is summation of xi fi upon capital N, तो xi fi की वैल्यू कितने, 382.5, and capital N that is 31, and x bar is equals to 12.33. This is your mean. Understood? Now I want to find median. Formula of median, as we have discussed in previous lecture, that is L plus H by F, N by 2 minus C. What is L here? This is lower limit of median class. Understood? This is H is width of class interval. F is frequency of median class. N is sum of frequencies. C is frequency of median class. Sorry, C is cumulative frequency of median class, pre-median class. Understood? C is cumulative CF of pre-median class. Understood? How can I find median class? पहले हमें n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू क्या है, हमने निकाली 31, तो n by 2 निकालेंगे. Understood? मीडियन का बेसिकली मतलब क्या होता है, दैट इज अ मिडिल टर्म. ओके
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म, अंडरस्टूड है? ओके, अगर मीडियन का मतलब मिडिल टर्म होता है तो दैट मींस n की वैल्यू कितनी है, 31, तो हम उसका मिडिल टर्म निकालेंगे, दैट इज n/2। मींस अगर मुझे मीडियन क्लास निकालना है, सबसे पहला काम क्या होगा, मीडियन क्लास निकालना, तो पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू 31 है, तो n/2 क्या होगा, 31/2, ओके, दैट्स वैल्यू विल बी 15.5, करेक्ट? एंड लोअर इन क्लास मीडियन क्लास का तो 15.5 कहां पे आएगा, लुक एट दिस वन। अच्छा आप बताओ, CF, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज 10th पॉइंट, 10 तक ही मैक्सिमम पॉइंट आएंगे। अच्छा आप बताओ 21 पॉइंट तक कहां पे होगा, ये 12.5 21 तक होगा, 10 से आगे जितने भी पॉइंट वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 12.5। दैट मींस ये जो क्लास 21 वाले में आएगा, इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है, दिस इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास। फिर से एक बात, पहले हम क्या निकालेंगे, n, ठीक है, n/2 करेंगे, n/2 करा, इसमें 31 है तो n/2 क्या आएगा, 15.5। अच्छा 15.5 देखो कहां पे आएगा, ये 21 वाले में आएगा, और कहीं आ सकता है क्या, ये 10 है तो 10 से आगे और यहाँ पे 29 है, तो यानी कि 15.5 कहां पे आएगा, 21 वाले में। तो ये जो इंटरवल होगा इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे, एंड दिस इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास, अंडरस्टूड? एंड दिस इज कॉल्ड प्री मीडियन वैल्यू, प्री मीडियन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। दिस इज 11, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से, बिकॉज मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, ओके। और दिस इज L, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 10, विड्थ कितनी है, H की वैल्यू 10 to 15, 15 minus 10 कितना हो जाएगा, 5, अंडरस्टूड है? नाउ पुट द वैल्यू, मींस MD इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, n/2 minus C, n इक्वल टू 31, तो n/2 कितना हो जाएगा, 15.5, L इक्वल टू 10, H इक्वल टू 5, F इक्वल टू 11, L इक्वल टू 10 कैसे मिला, दिस इज योर मीडियन क्लास, एंड मीडियन क्लास में लोअर लिमिट कितनी है, दैट इज 10, एंड H कितना है, दैट इज विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास में विड्थ कितनी है, 10 to 15, that's width will be 5, and this is your frequency, it's frequency of median class, that is your 11, understood? Okay, now C is frequency of pre-median frequency, cumulative frequency of median class की pre-median frequency, pre-cumulative frequency, तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड है? ओके, C की वैल्यू पुट कर दी, अगर आपको MD निकालना है तो 10 प्लस 5/11, 15.5 माइनस 10, अंडरस्टूड है? तो 5.5 आएगा, अंडरस्टूड? व्हेन वी सॉल्व दिस वन देन आंसर विल बी 12.5। जस्ट लुक एट दिस वन, अगर आपको मीन बस निकालना है तो मीन निकालने के लिए समेशन xi fi अपॉन कैपिटल N की जरूरत होती है, तो हमें xf निकालना होगा। अगर आपको सिर्फ मीडियन निकालना है तो आपको x निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट टू फाइंड द मीन तो आपको x निकालना है, CF निकालना है, XF निकालना है, ठीक है? अगर आपको मीडियन निकालना है देन क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF निकालना, अंडरस्टूड है? Now look, another topic is mode. Highest frequency variable is called mode. It is denoted by MO, means ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड मोड। इफ नंबर ऑफ सिंगल वैल्यू अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, that value will called mode, then all the values that occur with the highest frequency are called modal value, means जो वैल्यू होगी उसे modal value कहेंगे। this is your example, means x and corresponding frequency, 0 की frequency कितनी है, 5, 2 की frequency 3, 3 की frequency 5, 6 की frequency 5, that means अच्छा अब maximum frequency क्या है, 5, और किस किस एलिमेंट की, 0 की है, 3 की है, 6 की है, then modal value is called modal value is 0, 3 and 6, 0, 3 and 6 are called modal value. Note, in group data more than one mode values are exist. Modal value कितनी more than one हो सकती है, understood है? This is the group data. Now given class interval, अगर class interval में है then आप उसका क्या निकाल सकते हो, modal value। अच्छा उसका modal value कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है that is modal value। अगर class interval में नहीं है तो डायरेक्टली निकाल लोगे, अगर class interval में है तो कैसे निकालोगे, तो L प्लस H, मींस किसी भी गिवन क्लास का मोर देन वन मोड एग्जिस्ट कर सकता है, मॉडल वैल्यू मोर देन वन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी डेटा का मोड यूनिक होगा।
मे नॉट बी यूनिक, अंडरस्टूड है, मोर देन वन हो सकते हैं। तो गिवन क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल में है तो मॉडल वैल्यू क्या होगी, एल प्लस एच, अंडरस्टूड। ये जो डिवाइड में पूरे का नहीं है, एल समेशन में है, अंडरस्टूड है, एल प्लस एच fm minus f1 upon 2fm minus bracket f1 plus f2. In some books they have written that L plus H fm minus f1 upon 2fm minus f1 minus f2 means minus को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। What is L here? This is a lower limit of modal class. What is this one? This is a lower limit of modal class. Fm is a frequency of modal class, understood? F1 is a frequency of pre-modal class, understood? F2 is a frequency of post-modal class. Okay, now look at this one. L क्या है, अगर यहाँ पे जो वैल्यूज है उसकी वैल्यू बता, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, Fm क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। दैट मींस पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास मिल गया तो L, Fm, F1, F2 सब मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास डेटा है, क्लास इंटरवल है 80 to 120 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 120 to 160 की फ्रीक्वेंसी 145, 160 से 200 की फ्रीक्वेंसी 380 एंड 200 to 220 की फ्रीक्वेंसी, sorry, this is not 220, this is 240, there is a mistake, this is not 220, this is 240, 200 to 240, this is 292, understood? Find mean, median and mode. mean आप अपने आप कर लो, do it yourself. मीडियन इज आल्सो सेम है, सिंपली क्या करोगे, कम्युलेटिव से, सॉरी, क्लास इंटरवल से x निकालोगे, फिर f निकालोगे, फिर cf निकालोगे, xf निकालोगे, उससे निकाल लोगे, अंडरस्टूड है। नाउ इसमें करते हैं क्यूमुलेटिव, सॉरी, दिस इज द क्लास इंटरवल 80 to 120 के बीच में का x कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 80 plus 120 that is 200 by 2 that is 100, 160 plus 120 that is 280, 280 by 2 that is 140, 160 plus 200 that is 360 by 2 180, 200 plus 240 that is by 2 is equals to 220, and corresponding frequency 12, 145, 380, 292, and CF is 12, 157, 537, 829. How can I find the modal class? My first aim is find the modal class. Okay, maximum frequency element, maximum frequency की जो रो होगी ना, that is called modal class. क्या बोलेंगे, पहले आपके देखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 380, मींस फ्रीक्वेंसी में जो एलिमेंट सबसे महंगा, सबसे बड़ा है जो वैल्यू, दैट इज 380, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो रो होगी उसे ब्रैकेट कर दोगे, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ओके, नाउ हमें वैल्यू, ये फार्मूला है, मींस L की वैल्यू चाहिए, H की चाहिए, FM चाहिए, F1 चाहिए, वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, L की वैल्यू, अच्छा आप बताओ, दिस इज योर क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 160 एंड अपर लिमिट क्या है 200, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। अच्छा आप बताओ, अगर मुझे क्लास विड्थ निकालनी है तो दोनों क्लास इंटरवल गिवन है 200 और 160, तो 200 माइनस 160 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो H की वैल्यू। अच्छा FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अच्छा मॉडल क्लास ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 380, सर CF यूज नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। F1 क्या है, प्री फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो क्या हो जाएगा सर, दैट इज 145। पोस्ट F2 क्या है, पोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दिस इज योर मॉडल क्लास एंड पोस्ट फ्रीक्वेंसी 292, तो मॉडल में 160 प्लस 40 इंटू 380 माइनस 145 अपॉन 2 इंटू 360 माइनस 145 प्लस 292, देन इक्वल्स टू 160 प्लस 40 इंटू 235, 380 minus 145 that is 235 upon 760 minus 437, 292 plus 145 that is 437. When we simplifying this one, 160 plus 40 into 235 upon 223, इसकी 40 into 235 upon 223 की वैल्यू जो होगी 42.5, प्लीज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटर। ओके, कैलसी से आप कैलकुलेट कर लेना, 160 plus 42.5 that is 202.15, this is your modal value. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं 15 नंबर के भी, दैट इज एक क्वेश्चन गिवन होगा, यही क्वेश्चन मान लो, इसमें गिवन होगा कि फाइंड मीन, मीडियन, मोड, अंडरस्टूड है। नाउ सिंपल है, अगर मीन चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, समेशन ऑफ xi fi, मींस आपको x निकालना होगा, क्लास इंटरवल की बात करो, अगर क्लास इंटरवल वाला जैसा ऐसा क्वेश्चन है,
अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको मीन चाहिए तो मीन चाहिए तो आपको सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है। दैट मींस मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi fi अपॉन कैपिटल एन, यानी कि समेशन ऑफ fi रख दोगे, दैट इज वो 829 है, इसमें xf निकाल लोगे, बिकॉज़ x चाहिए तो आप ci से x निकाल लोगे। अगर मीडियन चाहिए तो आपको x की तो जरूरत है नहीं, xf की जरूरत नहीं है, दैट मींस आपको मीडियन क्लास निकाल लोगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी cf निकालना होगा तो 829 बाई 2 करोगे, इससे क्या आ जाएगा 415। 415 किसमें होगा, इस वाले में होगा, दैट इज मीडियन क्लास भी हो जाएगा। उसमें जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस H, वो जो फॉर्मूला होता है एफ एन बाई 2 माइनस सी एच बाई एफ, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। अंडरस्टूड है? तो अगर इसमें चाहिए तो मॉडल क्लास मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, इसमें एक्स भी नहीं निकालना और सी एफ भी नहीं निकालना, मीडियन वाले में एक्स नहीं निकालना, सी आई निकालना है, एफ है सी एफ निकालना, बस सिंपली आपको फॉर्मूले से ही समझ में आएगा क्या करना। मोड में कभी भी सी एफ नहीं निकालना और एक्स नहीं निकालना, मीडियन की जरूरत होगी तो एक्स नहीं निकालना, सी आई एफ और सी एफ निकालना, अगर मीन की जरूरत है तो सी आई एफ एक्स सी एफ एक्स एफ सारी की जरूरत होगी। अंडरस्टूड है? इस टाइप का एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का भी मे भी आ सकता है। नाउ समटाइम्स इन योर एग्जामिनेशन दे आस्क व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो MO is denoted by mode, MD is denoted by median and means M से डिनोट करते हैं। मींस समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशन क्या है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि मीडियन और मोड गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, मीन। अगर मीन और मीडियन गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, मोड। अंडरस्टूड है? ओके, नाउ लुक एट दिस नोट, among 3 measures, अगर किसी ने कहा कि among these mean, median, mode, which one is best? तो mean, median and mode, mean is best measures because ये सारे डेटा को यूज करता है एटलीस्ट। अंडरस्टूड है? अगर मीन की बात करें तो मीन में क्या होता है कि वो मिडिल वैल्यू देखता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मीन में कहीं ना कहीं मीडियन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का इफेक्ट होता है, मीडियन में कोई इफेक्ट नहीं होता। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज ओनली, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड है? ओके। और मोड में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जैसे आपके क्लास की बात करें, अगर क्लास में 60 स्टूडेंट है, मान लो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स है। अंडरस्टूड है? 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स है, बाकी 15 स्टूडेंट ऐसे जिनको 0 मार्क्स है, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके थोड़ा सा अच्छे मार्क्स है। तो अगर मैं मोड की बात करूं तो क्या है 10, अगर मीडियन उससे मान लो मीडियन उसका 8 है, तो मीडियन में तो सारी वैल्यू यूज हो रही हैं, बट मोड में एक ही वैल्यू यूज हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो वैल्यू आएगी। मींस among the 3 measures mean, median and mode, mean is best value, best measure। अंडरस्टूड है? नाउ अगर मैंने बात करी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन वी हैव 5 थिंग्स, 5 मेजर्स। फर्स्ट वन मीन, और अर्थमेटिक मीन बोथ इज सेम। सेकंड वन इज मीडियन, थर्ड वन इज मोड, अनदर वन इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था, अगर इफ 2 नंबर्स a and b are gm, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर तो उसका gm निकालेंगे तो ab की पावर हाफ आएगा। अगर x1 x2 xn नंबर्स हो तो उसका gm क्या होगा, x1 x2 सबका मल्टीपल्स इन की पावर 1 अपॉन n। hm क्या होगा, x1 x2 xn are in hm, then hm is equals to 1 upon n, 1 upon n, 1 upon x1, 1 upon x2, 1 upon xn। understood? Okay, now your some in your unit third, I think this is your unit third, basic of statistics in measure of central tendency. Now your measure of central tendency are basic of statistics finished. Okay, so in next class we will discuss probability. Okay, or no we will not discuss probability, हम range, quartile range ये सब डिस्कस करेंगे, but these are most important क्या है, मेन, मीडियन, मोड। इसका क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जामिनेशन में। बट ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इज नॉट सो important. Sometimes in examination they ask the question, but mean, median, mode must एग्जाम में आएगा। okay then thank you so much.